Hey, hi guys. Good morning. Welcome to the awesome session of current affairs of science and technology, environment and ecology and geography mapping. Let's crack UPSC CSE with India's largest learning platform, that is Unacademy. You already know about this. On Unacademy, you will get daily live classes which are very important and very crucial for your pre as well as mains preparation. We are providing you structured courses on Plus as well as Iconic. So if you are planning to study in a structured manner, you should be on the Plus or Iconic, and for that you need one code, and the code is SKUS. When you're going, guys, I am conducting daily live tests every day at 8 a.m. in the morning and every day at 4 p.m. in the evening, and both these tests are free of cost. But these tests are available on Unacademy लर्निंग ऐप. जब आप ऐप पे टेस्ट देते हो तो वहां पे पॉल ऑप्शन होता है, तो आप पता कर सकते हो कि वेयर एग्जैक्टली यू स्टैंड इन द क्राउड. Everything that is happening on Unacademy is in recorded format, so you will get unlimited access to each and everything, guys. Then for that you need Unacademy learning app. So download Unacademy learning app either from the Google Play Store or from the Unacademy or the App Store. Okay. Then this is my Telegram channel. Please subscribe to this Telegram channel so that you will get all the notes that I am explaining in these lectures, as well as this is my Unacademy profile. Please follow me on Unacademy, dedicate your hats to me on Unacademy, and yes, don't forget to use SKUS code for 10% discount on Unacademy subscriptions. These are India's top educators who will help you to crack UPSC CSE examination. I am already one of them, guys. Thank you very much. When you are going on Unacademy, guys, we give you comprehensive syllabus coverage from polity to geography to science and technology, from history to optional courses to environment and ecology, from current affairs to Indian economy to practice and strategy. When you are going on Plus, guys, you will get live classes, test series, unlimited practice and structured schedule. So these are the four benefits of Plus. But if you and these are the different plans that are available on Plus. यहाँ आप देख सकते हो अलग अलग plans Plus के, and if you use this viral code of success SKUS, it will give you 10% discount on Unacademy Plus subscription, and you can enjoy Plus at discounted prices. When you are going on Iconic, guys, on Iconic all the benefits of Plus will be there. They are already there. Good morning, Ajay. Am I audible and visible, Ajay? Along with that, extra आपको मिलेगा पर्सनल कोच, डेली मेंस क्वेश्चन एंड आंसर प्रैक्टिस, स्टडी प्लानर एंड पर्सनलाइज्ड फीडबैक. These are the three plans that are available for Iconic, and all these plans you can enjoy in a discounted price with the help of SKUS code that will give you 10% discount. These are the plans for the optional, guys. तो आपको जीएस के लिए अलग और ऑप्शनल के लिए अलग, इस तरीके से भी आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो. हर जगह पे आपको सब्सक्रिप्शन लेते वक्त SKUS ये कोड यूज करना है, दैट विल गिव यू 10% डिस्काउंट. प्लस अगर आपको कॉम्बो लेना है, मतलब ऑप्शनल और जीएस दोनों का एक साथ सब्सक्रिप्शन लेना है, तो आप जीएस का आइकॉनिक और ऑप्शनल का प्लस ले सकते हो, और जीएस का प्लस और आइकॉनिक का भी प्लस ले सकते हो. तीनों में हमने 12 मंथ, 24 मंथ एंड 36 मंथ के ऑप्शंस आपको दे रखे हैं. ओके, हर जगह पे वेदर यू आर गोइंग फॉर दिस, आप SKUS 10% डिस्काउंट के लिए कोड यूज करोगे. इवन इन दिस केस यू कैन गो अहेड विद दिस कोड SKUS. गुड मॉर्निंग सौरभ. We are launching new batches for 21, 22 and 23. So guys, these are the batches that we are going to launch from 11th of January for 22. You should be there. अगर आपको ये batches attend करनी है तो you have to be on the plus, and अगर आपको plus पे जाना है तो you need to use code SKUS. Then these are the batches that we are launching for 23 on 11th of January. तो ये आप batches देख लीजिए 23 की, यहाँ पे भी आपको SKUS कोड हेल्प आउट करेगा. गुड मॉर्निंग मधु. Then guys, we are planning to hike the price of Iconic because it is a very big hit among the students. So if you are planning to be on the Iconic, go there as soon as possible because there will be an Iconic price hike. Then this is my 8 a.m. live test every day at 8 a.m. in the morning. Everyone should attend. This is my course on space technology. This is a course of on Plus. So आपको ये भी course देखना if you are on Plus, and if you are not on Plus, you should be there with the help of SKUS code. Okay. Very good morning, Akshay Kumar. Very good morning, Riddhi and Ramandeep
and Anil Kashyap. Hi Anil, is this your first class? So guys, we are starting our lecture. Guys, have you ever heard about the, okay, before we go ahead, I would like to ask you a few questions. How much time it takes to grow a full grown forest? How much time it takes to grow a full grown forest? I am talking about forest. गाइस, आपको जो अमेज़न में या वेस्टर्न घाट, एक्सक्यूज मी गाइस, या फिर नॉर्थ ईस्ट में जो मिल रहा है ना, तो ये जो फॉरेस्ट है, फुल ग्रोन फॉरेस्ट ग्रो करने के लिए यू नीड एटलीस्ट, एक्सक्यूज मी गाइस, यू नो कि मुझे थोड़ा एलर्जी इशू है, तो एक बार अगर मुझे छींक आ गई तो कम से कम, अरे रिद्धि कहाँ, 2 साल में एक ट्री भी ठीक से ग्रो नहीं होता। गाइस, एक फुल ग्रोन फॉरेस्ट ग्रो करने के लिए यू नीड एटलीस्ट 100 ईयर्स, मिनिमम 100 ईयर्स का टाइम लगता है आपको एक फुल ग्रोन फॉरेस्ट जनरेट करने के लिए। हेलो अमुस, गुड मॉर्निंग। शुभम राणा, वेरी गुड मॉर्निंग। सो अब होता क्या है, यहाँ देखिए, we are facing the climate change, we are facing the global warming, and we have very less time in our hand. So because of this guys, जापान में एक जो साइंटिस्ट है, बोटेनिस्ट थे, उन्होंने एक टेक्निक इन्वेंट की जिसे कहते हैं मियावाकी टेक्निक, and this Miyawaki technique help us to grow a full grown forest in 25 to 30 years. जहां पे फुल ग्रेन फॉरेस्ट को नेचुरली ग्रो होने के लिए मिनिमम 100 इयर्स लगते हैं, यहाँ पे आप 25 to 30 इयर्स में एक फुल ग्रोन फॉरेस्ट ग्रो कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ मियावाकी टेक्निक। Guys, you can, yes Riddhi, that much time is required to have a full grown forest. We are not talking about a single tree. ओके, यस, इट इज अ लॉन्ग पीरियड। तो अब आपको पहला पॉइंट याद रखना है, मियावाकी टेक्निक हेल्प अस टू ग्रो अ फुल ग्रोन एंड डेंस फॉरेस्ट इन लेस टाइम, दैट इज 25 to 30 years, दैट कैन हेल्प अस टू डील विद द क्लाइमेट चेंज, टू डील विद द ग्लोबल वार्मिंग। क्लियर? चलिए आगे। नंबर 1, थ्राइविंग इन अ क्राउड। वन बाय वन आपको चीजें मैं बताते जाऊंगा। जापानीज इंस्पायर्ड मियावाकी फॉरेस्ट emerge as a popular solution to restore degraded habitats in India. The first point, Aniketa Bhartiya, good morning. The first point, Miyawaki forest can be used to restore, Miyawaki forest can be used to restore degraded lands in India. It can be used to restore degraded lands in India. Is that clear? The first point. Okay, okay, Madhu. I will work on that, don't worry. नहीं आएगा इको का। अब मधु आपको इको नहीं आएगा। Now sound will be very clear. Hello. So पहला पॉइंट, यस, पहला पॉइंट, मियावाकी फॉरेस्ट जो है, वी कैन यूज दिस टेक्निक और दिस फॉरेस्ट कैन बी यूज टू रिस्टोर डिग्रेडेड लैंड्स। ये पहला पॉइंट याद रखना है। नाउ व्हाट एग्जैक्टली मियावाकी टेक्निक इज? इट इज अ मेथड ऑफ सोइंग वेरी यंग सीडलिंग्स क्लोज टुगेदर इन अ स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड। देखिए आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे आप सीड्स सो नहीं कर रहे हो, यू विल सो, जैसे ये नर्सरी है, सपोज आपकी ये नर्सरी है, तो इस नर्सरी में आप क्या करोगे, सीड्स सो करोगे, इन सीड्स से बनेगी सैपलिंग्स, मतलब छोटे 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 प्लांट्स बनेंगे ट्रीज के, ठीक है। अब ये जो सैम्पलिंग्स है ना, ये सारे सैम्पलिंग्स आप जैसे नॉर्मली ये इतना एरिया है, तो इतने एरिया में अगर आपको सफिशिएंटली ट्री ग्रो करने, तो आप मैक्सिमम 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ये 8 ट्रीज को प्रॉपर स्पेस, एयर, मिनरल, न्यूट्रिएंट, वाटर सब मिलेगा। इतने टाइम में आप क्या करोगे, इतने टाइम में आप क्या करोगे, वी आर डिस्ट्रॉइंग 100 ईयर प्रोसेस इन जस्ट आवर्स। यस अजय कृष्णा, ट्रू। तो नॉर्मल फॉरेस्ट में आपको इतने मिलेंगे, जिसमें जिसे ग्रो होने के लिए 100 इयर्स का टाइम लगता है। लेकिन मियावाकी में क्या करते हैं, हम इन सैम्पलिंग्स को लेते हैं,
सेम एरिया है, सपोज ये है आपका सेम एरिया, इसमें हम क्या करते हैं, इन सैम्पलिंग्स को ऐसे एकदम नजदीक ग्रो करते हैं, एकदम नजदीक नजदीक। तो ऊपर देखिए कितने हैं और यहाँ कितने में आप काउंट भी नहीं कर सकते, इतने सैम्पलिंग्स आप यहाँ पे क्या करोगे, शो कर दोगे। अब इससे होगा क्या, व्हेन यू शो दीज सैम्पलिंग्स इन सच अ स्मॉल प्लॉट, तो आप कहोगे दिस इज अ क्राउडेड प्लेस फॉर द प्लांट। मियावाकी में क्या होता है, आप क्राउडेड फॉर्म में इनको ग्रेटेस्ट थिंग सिंस स्लाइस्ड ब्रेड। अनिल कश्यप, व्हाट इज इट? इट इज सेम एज आर्टिफिशियल ग्रोइंग इन स्मॉल एरिया। यस रमनदीप। अब इससे होता क्या है कि क्योंकि दिस प्लेस इज क्राउडेड, तो दीज सैम्पलिंग्स विल compete for light, like the things that happen in the tropical rainforest। हमने बायोम देखा था ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाला। वी नो इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट देयर इज अ इंटेंस कंपटीशन फॉर द वाटर, न्यूट्रिएंट्स एंड द लाइट। द सेम कंपटीशन बट particularly for the light will start in these samplings because there is a competition। this A sampling अगर इसकी ये हाइट है और B की ये है, तो ये अपनी हाइट और ज्यादा बढ़ाएगा क्योंकि उसे लाइट चाहिए, B उससे ज्यादा बढ़ाएगा। तो इससे होगा क्या, जो फॉरेस्ट आपका 100 इयर्स में ग्रो होने वाला था, दैट फॉरेस्ट विल ग्रो इन लेस देन 25 to 30 years because of the intense competition for the light। and why there is an intense competition for the light? because these samplings are stored in a crowded area, because these samplings are shown in a crowded area। so first thing Miyawaki technique or Miyawaki forests are used to restore degraded lands। they can be used to restore degraded lands in India। is that clear? Number 2, how we acquire or how we create a forest within 25 to 30 years? by sowing very young seedlings, are not seeds, by sowing very young seedlings close together in a small plot of lands। and when we sow them very close together in the small plot of land, they will compete for the light, and because they are competing for the light, they will grow very fast, and that's why that forest will come into existence within a time frame of 25 to 30 years। okay, second, this method can be used to restore vegetation on a degraded land within a short term। चलिए, so this point is clear, first slide is clear, and concept is also clear। now we are going to the next slide। see, in India is a party। see, normal rule क्या है, how much area of a country or a state should be under the forest cover? how much area of a country or a state should be under forest cover? तो आपने ये ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, या इवन आपने एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी में भी ये पढ़ा हुआ है कि एटलीस्ट 33% इट इज लीगली बाइंडिंग। it is legally binding कि every state must have 33% of area of that state under the forest cover, and country should have minimum 33% area of the country under the forest cover। तो ये हमने कब किया? in India is a party to the pledge in 2015 made to UNFCCC to restore the green cover of 33% of its geographical area by 2022। तो if we want to achieve, देखिए 2020 की अगर हम बात कर रहे हैं तो वी हैव 24% ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया अंडर फॉरेस्ट। दिस फैक्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस आंसर राइटिंग। ओके, बाय 2022 मींस वी हैव ओनली 2 years टू bring at least 9% area under forest cover, and that is possible with Miyawaki technique only। right now without Miyawaki we cannot achieve this in 2 years। I'm very Anjali Singh, we all are good guys। चलिए, तो यहाँ इस स्लाइड से आपको पता चला कि मिनिमम 33% एरिया ऑफ द कंट्री शुड बी अंडर, मिनिमम 33% एरिया ऑफ द कंट्री शुड बी अंडर फॉरेस्ट कवर। ओके, इट शुड बी अंडर फॉरेस्ट कवर। क्लियर? वी आर गोइंग अहेड गाइस, हियर यू गो।
Same very important point for your preliminary examination. It is a very important point for your prelims 2021. Guys, give me a minute. The technique that we are calling Miyawaki technique. Sir, do you know about class 11th exam in Delhi? No, I don't, Anjali. Swapna Mandal, you have to watch this from in recorded format. You can watch now. Continue. पहला वाला जो पार्ट आपका मिस हुआ है वो आप बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हो. तो देखिए, it is very important for your prelims 2021. Yadadri. What is Yadadri? It is the Miyawaki technique. Again, ये मियावाकी टेक्निक ही है, लेकिन इसमें क्या होता है, यादाद्री टेक्निक. ये नाम उन्होंने मियावाकी टेक्निक का यादाद्री रखा है तेलंगाना में. सो तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट इज एक्सपेरिमेंटिंग विथ अ वर्जन ऑफ मियावाकी थ्रू द यादाद्री मेथड ऑफ डेंस प्लांटेशन. सो व्हाट इज यादाद्री मेथड? What is Yadadri method, guys? Yadadri method is a version of Miyawaki. It is a version of Miyawaki through which we are creating dense plantation. Clear? Dense plantation. Okay, is that clear? Yes, Sinu, अब आपको बियर करना पड़ेगा. There is a marriage hall near my place. Clear? यादाद्री इस स्लाइड से याद रहेगा. यादाद्री, please remember this Yadadri point. Okay, we are going ahead, guys. So a natural forest takes 100 years to grow, but in the Miyawaki method, where plants compete for sunlight and therefore tend to grow upward faster than sideways, we get the same result in around 20 to 25 years. अराउंड 20 to 25 years. So जो चीज 100 years में होनी थी वो आपकी 20 से 25 years में हो रही है, because these plants are competing for light and they are growing ahead. Okay, ये अपवर्ड डायरेक्शन में ग्रो होते हैं, नॉट इन साइडवे डायरेक्शन. चलिए आगे वन बाय वन मैं आपको सभी को मियावाकी मेथडोलॉजी अंडरस्टैंड हुआ. एवरीबडी अंडरस्टूड व्हाट इज मियावाकी? एवरीबडी अंडरस्टूड दैट? सुनिए अब, what is the principle behind Miyawaki? Principle that native, very important keyword for your prelims. In Miyawaki methodology, we are supposed to grow native plants. We are supposed to grow native trees, are not exotic or imported trees or plants. Native or traditional trees of a particular local area, they have more capability of creating a good and self-sustained ecosystem than the exotic and foreign trees which are grown artificially on that particular area. तो देखिए, नंबर वन, मियावाकी में स्मॉल एरिया मोर ट्रीज, ये पहला प्रिंसिपल है. स्मॉल एरिया मोर trees. What is the second principle under Miyawaki? The second principle under Miyawaki is that these trees or these plants should be native or traditional. Third thing that you need to remember for your prelims in Miyawaki is that आपके यहाँ पे you are not sowing seeds. What you are doing? You are sowing seedlings. आप यहाँ पे सीडलिंग सो कर रहे हो. और कितना टाइम लगता है फॉरेस्ट को ग्रो होने के लिए? 20 से 25 इयर्स. वन बाय वन मैं आपको कंसेप्ट स्लोली एकदम अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूं. ओके, पॉइंट्स टुवर्ड्स सिलेक्शन ऑफ नेटिव ट्रीज एज कंपेयर टू द एक्सोटिक ट्रीज. तो अकीरा मियावाकी जिन्होंने ये टेक्निक इन्वेंट की है, उनका कहना है कि यू शुड यूज नेटिव स्पीसीज, नॉट द फॉरेन स्पीसीज और एक्सोटिक स्पीसीज. चलिए आगे, कितना ऑसम चीज है ना. तो आपने सबसे पहले क्या किया? आपने सॉइल सर्वे किया, देन आपने नेटिव स्पीसीज फाइंड आउट की, बायोमास की जो है उसके बारे में सर्च किया, देन आपने सैम्पलिंग्स प्रिपेयर किए या फिर प्रोक्यूर किए. वो प्रिपेयर करने के बाद फिर आपने सॉइल प्रिपेयर की, माउंट प्रिपेयर किया, एंड आफ्टर दैट आपने प्लांटेशन विद कम्युनिटी किया. गाइज, यू कैन डू दिस एट योर होम. You can create Miyawaki forest at your home. कभी करके देखिए, मजा आएगा आपको. You can create Miyawaki forest at your home.
या आप मत कीजिए, आप एक काम करिए, आप अपना स्टडी पे ध्यान दीजिए। अगर आपके फैमिली में कोई चिल्ड्रंस है ना, किड्स होगी ना, उनको ये मियावाकी टेक्निक में गाइड कीजिए और उनको वो मियावाकी टेक्निक वाला जो प्रोजेक्ट है ना, एज अ प्रोजेक्ट उनको बोलिए आप तैयार करो और फिर आपके स्कूल में दिखाओ। तो इट कैन बिकम अ वेरी ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट फॉर द चिल्ड्रंस इन द स्कूल, मियावाकी फॉरेस्ट। तो कम्युनिटी से ग्रो किया एंड देन मेंटेनेंस एंड ग्रोथ मॉनिटरिंग रेगुलरली फॉर नेक्स्ट 20 से 25 ईयर्स। दिस इज मियावाकी। सो मियावाकी में पहला पॉइंट सैम्पलिंग शो करनी है, नॉट सीड्स। देन दूसरा पॉइंट स्मॉल एरिया लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज, एंड नंबर 3 आपको यहाँ पे नेटिव या ट्रेडिशनल स्पीसीज यूज करनी है, नेटिव और ट्रेडिशनल। ओके, वी आर गोइंग अहेड। implementation in our own house, yes Amus। चलिए आगे। Day 1 samplings of 50 to 100 native species planted at density of 3 to 5 square kilometer। मतलब आपने 3 to 5 square meter के एरिया में कितने नेटिव स्पीसीज ग्रो की करनी है, 50 से 100। ओके, द फॉरेस्ट बिकम्स सेल्फ सस्टेनिंग आफ्टर 2 years ऑफ वाटरिंग एंड डीवीडिंग। मतलब आपको इस फॉरेस्ट की बस 2 साल के लिए केयर लेनी है। आफ्टर दैट फॉरेस्ट बिकम्स सेल्फ सस्टेनिंग, वो फॉरेस्ट अपने आप ग्रो होगा, फिर आपको उसे मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। यू नीड टू डू दिस ओनली फॉर 2 years। Yes, Pratibha Zade, and that is the, I will teach my students about this। Pratibha Zade, that is the beauty of UPSC। If you prepare UPSC ना, और अगर आप एक अच्छी मॉम बन सकते हो, आप एक अच्छे डैड बन सकते हो, आप एक अच्छे टीचर बन सकते हो, आप एक अच्छे लीडर बन सकते हो। जस्ट आपको UPSC सीरियसली करनी है, ठीक है, क्लियर। एंड आफ्टर 10 years ग्रोइंग अनडिस्टर्ब्ड इट बिकम्स इक्विवेलेंट ऑफ 100-year-old नेचुरल फॉरेस्ट। देखिए आफ्टर 10 years अगर हमने ग्रोथ अनडिस्टर्ब्ड रखी तो आफ्टर 10 years इट विल बिकम इक्विवेलेंट टू 100-year-old नेचुरल फॉरेस्ट बिकॉज ऑफ द इंटेंस कंपटीशन फॉर लाइट। बिकॉज ऑफ द इंटेंस कंपटीशन फॉर लाइट दे विल ग्रो वेरी फास्ट। साइड ग्रोथ हमने बंद कर दी। ओके, यस, यू कैन ऑल्सो बिकम अ गुड डॉटर, गुड सन, गुड हस्बैंड, गुड वाइफ, सब कुछ आप अच्छे बनोगे। आपको बस यूपीएससी सीरियसली करनी है। चलिए आगे। नाउ अगर ये सिंपल सी बात है, हर कोई अपने घर में क्या ग्रो करना चाहता है, एवरीवन वांट टू ग्रो दी लॉन्स। आपने आपका जो ड्रीम हाउस है उसमें आपने लॉन के लिए जगह रखी होगी। तो इंस्टेड ऑफ ग्रोइंग लॉन्स गाइज, यू कैन ग्रो अ मियावाकी फॉरेस्ट। मियावाकी फॉरेस्ट में आप नेटिव स्पीसीज ग्रो करोगे या फॉरेन स्पीसीज, नेटिव स्पीसीज। आप अपने घर के जो भी, जिन लोगों के घर पे गार्डन्स है ना, आप देखिए वो सारे शो के ट्रीज लगाते हैं, कॉनिफेरस फॉरेस्ट वाले। दैट इज नॉट गुड। आपकी नेटिव ट्रीज लगाओ यार, उसमें ज्यादा मजा है। ओके, सो मियावाकी फॉरेस्ट में देखिए ये मेंटेनेंस फ्री होता है क्योंकि ये आफ्टर 2 years इट बिकम सेल्फ सस्टेनिंग। इसे आपको रेगुलर मेंटेनेंस करना पड़ता है। देन इट गिव्स यू, मियावाकी फॉरेस्ट विल गिव यू फ्रेश फ्रूट्स एंड इट विल ऑक्यूपाई एम्प्टी स्पेस। अगर आपने नेटिव स्पीसीज लगाई है तो आपको ये फ्रेश फ्रूट देगा। नो आउटपुट, ऑक्युपाइज ग्राउंड, कोई आउटपुट नहीं है और ग्राउंड को ऑक्युपाई करता है। थिन सिंगल लेयर ग्रीनरी, आपको 30 times मोर CO2 एब्जॉर्प्शन एंड वाटर रिटेंशन होगा। डज मोर हार्म देन गुड टू द एनवायरमेंट। तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम से बेटर है कि आप फॉरेस्ट इकोसिस्टम के साथ जाइए, मियावाकी फॉरेस्ट के साथ जाइए अपने घर के पास। एक्चुअली ये जो चीज है ना, एवरी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कैन इंप्लीमेंट दिस इन देयर ओन हाउस। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को जो घर मिलते हैं ना, गवर्नमेंट के थ्रू घर मिलते हैं, उन गवर्नमेंट हाउसेस में ये इंप्लीमेंट कर सकते हैं और एक अच्छा एग्जांपल रख सकते हो। लेकिन कुछ बहुत लोगों को एग्जाम क्लियर करने के बाद कुछ नहीं करना होता। सर बस प्लांट्स के बीच का स्पेस कम होने से इनका ग्रोथ टाइम कम हो गया। यस मधु, प्लांट के बीच में स्पेस कम है तो उनकी साइड ग्रोथ नहीं होती। वही एनर्जी वो किस लिए यूज करते हैं, अपनी हाइट बढ़ाने के लिए, और हाइट बढ़ गई मतलब फॉरेस्ट क्रिएट हुआ। ओके, सो चलिए आगे। देन देखिए 1 ट्री पर 10 स्क्वायर किलोमीटर्स में 1 ट्री होता है प्लांटेशन में। यहाँ पे 30 ट्रीज पर 10 स्क्वायर किलोमीटर डेंसिटी देखिए। देन यहाँ पे लिमिटेड वैरायटीज होती है, प्लांटेशन में 1 या 2 वैरायटीज होती है। यहाँ पे मिनिमम 50 डिफरेंट स्पीसीज होती है। यहाँ पे सिंगल लेयर्ड ग्रीनरी मिलेगी प्लांटेशन में, आपको यहाँ मल्टी लेयर्ड फॉरेस्ट मिलेगा क्योंकि ये आपका डेंस फॉरेस्ट बन रहा है तो इसमें 3 लेयर्स मिलेंगे, 3 लेयर्स, यू नो दैट।
इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट भी आपको 3 लेयर मिलते हैं और टेम्परेट डिसिडियस में भी आपको 3 लेयर मिलते हैं. Extensive maintenance free, susceptible to pests and diseases. It is 100% organic, zero pesticide use, natural biodiversity, and it is self sustaining. This is a self sustaining ecosystem guys. आपको बस 2 साल इसका ख्याल रखना है and after that you can just relax and enjoy the benefits provided by this forest. ये ना दिल्ली अर्बन एरियाज में ये बहुत इंप्लीमेंट करना स्टार्ट हुआ है. लोग ना अपने घर पे स्मॉल एरिया गैलरी में वगैरह ना वो मियावाकी फॉरेस्ट क्रिएट कर रहे हैं दिल्ली में, मुंबई में, ताकि उनको फ्रेश ऑक्सीजन मिले. आपको और हमें फ्रेश ऑक्सीजन के लिए लड़ने की जरूरत नहीं, एटलीस्ट फॉर मी, क्योंकि मैं विलेज में रहता हूँ. हमारे आसपास पूरे खेत ही है और ट्रीज उतने ज्यादा नहीं है लेकिन खेत है, तो एयर एटलीस्ट क्लीन है. ये मियावाकी फॉरेस्ट टेक्निक इज यूज्ड बाय द अर्बन dwellers और पीपल लिविंग इन अर्बन एरियाज फॉर फ्रेश एयर. Okay, we are going ahead. Then देखिए आफ्टर 20 मंथ मतलब लेस देन, ये यहाँ पे इन्होंने ये मियावाकी टेक्निक से इतने पार्ट में ट्रीज ग्रो किए थे. अब देखिए कितने सारे ट्रीज ग्रो हो गए और ये लॉन हो गया. तो मियावाकी टेक्निक लेस देन 20 मंथ में ये पूरा फॉरेस्ट जनरेट हो गया. नेटिव स्पीसीज यूज करना मस्ट है. ओके, यस प्लीज डू दैट. नाउ दैट्स इट. देन अब देखिए आर्मेनिया और अजरबैजान का झगड़ा आपको पता है. मुझे बताइए, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछने वाला हूं, आप कंट्री का नाम बताओगे उस एरिया रिलेटेड. गाजा स्ट्रिप, व्हाट इज द नेम ऑफ कंट्री जिससे रिलेटेड है ये. देन वेस्ट बैंक, नेम ऑफ द कंट्री. डिस्प्यूट किस दोनों के बीच में, गाजा स्ट्रिप का डिस्प्यूट, वेस्ट बैंक का डिस्प्यूट. देन गोलन हाइट, disputed land between. Then Falk land Icelands, disputed between. Then Nagorno Karabakh region, disputed between. Then Tigray region. Then इसके बाद यस, दिस गाजा स्ट्रिप एंड वेस्ट बैंक, these are related to Israel Palestine dispute. They are related to Israel Palestine dispute, and this Golan Height is related to Israel Syria dispute, a dispute between Israel and Syria. Falkland Iceland, it is a dispute between UK and Argentina. Okay, then this Nagorno-Karabakh, it is a dispute between Armenia and Azerbaijan. And this Tigray is a region in Ethiopia जहां पे प्रॉब्लम चल रहे हैं. राइट, मुझे बताइए साइप्रस, इट इज अ कंट्री, एंड किन 2 कंट्रीज के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है बिकॉज साइप्रस को लेकर. तो दिस डिस्प्यूट इज गोइंग ऑन बिटवीन ग्रीक एंड टर्की. रिसेंटली टर्की के प्रेसिडेंट ने कुछ कमेंट दिया था साइप्रस पे और हमने साइप्रस को कल डिस्कस भी किया था. ओके, वी आर गोइंग अहेड गाइस. देख लिया सभी ने, चलिए आगे. सो ये जो आर्मेनिया और अजरबैजान का ये जो डिस्प्यूट है, दिस इज नागोर्नो कराबाख रीजन. यू कैन सी नागोर्नो कराबाख रीजन. यहाँ पे देखिए ये अजरबैजान है, ये आर्मेनिया है. लेक सिवान इज इन आर्मेनिया. लेक उर्मिया कहाँ पे है? कैन एनीबॉडी टेल मी? लेक उर्मिया इज लोकेटेड इन विच कंट्री? Lake Urmia is located in which country? Yes guys, Lake Urmia is located in Iran. तो यहाँ पे लेक सीवान अगर पूछा जाता है तो इट इज लोकेटेड इन आर्मेनिया. पॉसिबिलिटी ज्यादा है पूछने की. देन आर्मेनिया इज अ लैंड लॉक्ड कंट्री. इट इज सराउंडेड बाय अजरबैजान, जॉर्जिया, टर्की एंड ईरान. ओके, ये 4 कंट्री से सराउंडेड है. इट इज अ लैंड लॉक्ड कंट्री. सो दिस इज अबाउट आर्मेनिया एंड अजरबैजान. अजरबैजान हैज अ कोस्ट लाइन ऑफ कैस्पियन सी, और आर्मेनिया और अजरबैजान दे आर लोकेटेड इन अ कॉकेसस रीजन. इसे कॉकेसस रीजन कहते हैं. मुझे बताइए कॉकेसस रीजन इज सैंडविच्ड बिटवीन विच 2 वाटर बॉडीज? कॉकेसस रीजन इज सैंडविच्ड बिटवीन विच 2 वाटर बॉडीज? आंसर कीजिए. Between which 2 water bodies it is sandwiched? Guys, it is sandwiched between the Caspian Sea and the
ब्लैक सी, इन दोनों के बीच में ये सैंडविच्ड है। चलिए वी आर गोइंग अहेड। यहाँ पे हमारे 19 अक्टूबर के करंट अफेयर्स खत्म होते गाइस। मैंने आपको सभी को समझ में आया व्हाट इज मियावाकी फॉरेस्ट? एवरीबॉडी अंडरस्टूड व्हाट इज मियावाकी फॉरेस्ट? मियावाकी फॉरेस्ट के लिए दो तीन चीजें कंपलसरी है। वो दो तीन चीजें कौन सी है? नंबर 1 मस्ट है नेटिव और ट्रेडिशनल स्पीसीज यूज करना। इट इज मस्ट टू यूज नेटिव एंड ट्रेडिशनल स्पीसीज। वेरी गुड खुशबू कुमारी। सेकंड है वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, आप लोग बहुत सारे लोग आंसर कर रहे हैं। यहाँ पे मुझे एक नया नाम दिखा था, काउकास बिटवीन कैस्पियन सी एंड ब्लैक सी, करेक्ट। ओके, नेटिव एंड ट्रेडिशनल स्पीसीज यूज करना मस्ट है। वी डू नॉट सो सीड्स, वी सो सीडलिंग्स, हम सीडलिंग्स को शो करते हैं, सो करते हैं। एंड तीसरा स्मॉल एरिया एंड लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज एंड मेनी ट्रीज, स्मॉल एरिया एंड मेनी ट्रीज, इतना ज्यादा कि आप 10 स्क्वायर किलोमीटर में क्लोज टू 30 ट्रीज ग्रो कर सकते हो। एंड these Miyawaki forest grows in 20 to 25 years, in some cases within 10 years, equivalent to a 100 year forest। जो फॉरेस्ट बनने के लिए नेचुरली 100 ईयर लग जाते हैं ना, उतना फॉरेस्ट हम 10 या 20 या 25 ईयर्स में बना सकते हैं अंडर दिस मियावाकी टेक्निक। चलिए नाउ वी आर गोइंग टू द क्वेश्चन नंबर, सॉरी नवंबर 20। ओके, वी आर गोइंग टू द नवंबर 20 न्यूज। देखते हैं अब उसमें क्या क्या हमारे लिए रखा हुआ है। तो पहला, community cord blood banking saves child with a plastic anemia। Before we go ahead with this, how many of you are aware of stem cell banking? How many of you are aware of stem cell banking? अगर आपके फैमिली में कोई प्रेग्नेंट फीमेल होगी, आपकी भाभी या मामा नहीं, आपकी भाभी, आपकी मामी, आपकी चाची, कोई भी अगर आपके फैमिली में प्रेग्नेंट है, तो देखिए आपके फैमिली को एक कंपनी ने अप्रोच किया होगा। दे आर ऑफरिंग टू स्टोर स्टेम सेल्स, दे आर ऑफरिंग टू स्टोर स्टेम सेल्स फॉर 30 to 35 years at particular cost, so that these stem cells can be used after 30 to 35 years for treatment of that baby। जिस बेबी की स्टेम सेल हम सेव करेंगे ना, उस बेबी के ट्रीटमेंट के लिए यूज हो सकती है, उस बेबी के मदर के ट्रीटमेंट के लिए यूज कर सकते हैं, फादर के ट्रीटमेंट के लिए यूज कर सकते हैं, सिबलिंग के ट्रीटमेंट के लिए यूज कर सकते हैं, ग्रैंडफादर के ट्रीटमेंट के लिए यूज कर सकते हैं, as well as we can use that for the treatment of grandmother। This is what they tell you। वो कंपनीज आपको ये सब बताकर कन्विंस करती है, एंड देन यू बिकम रेडी टू पे 2 to 3 लाख रुपी जस्ट फॉर द स्टोरेज ऑफ दीज स्टेम सेल्स फॉर नेक्स्ट 30 से 35 ईयर्स। ओके, Xavier sibling is a different Ajay Kroshna and this is different। okay, अब यही कंसेप्ट यहाँ पे इस न्यूज में community cord blood banking saves child with aplastic anemia। First we will understand what is aplastic anemia and how we can treat that aplastic anemia, and then we will come back to the stem cell part। Ramandeep, it is illegal। It's not actually illegal, but it is not recognized by ICMR। आईसीएमआर ने इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया हुआ है। तो देखिए, कम्युनिटी कॉर्ड ब्लड बैंकिंग सेव्स चाइल्ड विद अप्लास्टिक एनीमिया। पहले हम देखते हैं व्हाट इज अप्लास्टिक एनीमिया गाइस। सो इन अप्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है, स्टेम सेल्स इन द बोन मैरो। उससे पहले और एक बात याद रखिए, जो स्टेम सेल्स होती है, आपको स्टेम सेल्स मिलती है एक तो एम्ब्रियो में, यू विल फाइंड स्टेम सेल्स आइदर इन द एम्ब्रियो और यू विल फाइंड स्टेम सेल्स इन द adult के केस में you will find stem cells in the bone marrow। adult के केस में स्टेम सेल कहाँ होती है, बोन मैरो में होती है। ठीक है, ये दो पॉइंट आपको याद रखने हैं फॉर योर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। आप में से अगर कोई ऐसा है जिसको स्टेम सेल कंसेप्ट पता ही नहीं है, जिसको स्टेम सेल ये कंसेप्ट पता ही नहीं है, तो लेट मी नो, आई विल एक्सप्लेन, अदरवाइज वी विल गो अहेड। ओके, चलिए, तो अडल्ट के बोन मैरो में स्टेम सेल्स है, तो स्टेम सेल्स इन द बोन मैरो प्रोड्यूस ब्लड सेल। हमारे बोन मैरो में जो स्टेम सेल्स होती है ना, हमारे बोन मैरो में जो स्टेम सेल होती है वो 3 टाइप की ब्लड सेल प्रोड्यूस करती है। दे प्रोड्यूस आरबीसीज, दे प्रोड्यूस डब्ल्यूबीसी, दे आल्सो प्रोड्यूस प्लेटलेट्स। तो
तो ये 3 टाइप की जो सेल्स है ना हमारी बोन मैरो में जो स्टेम सेल्स है वो प्रोड्यूस करती है। तो जब हमारे बोन मैरो की स्टेम सेल डैमेज हो जाती है या हमारे बोन मैरो की स्टेम सेल डिस्ट्रॉय हो जाती है तो हमारे बॉडी में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट बनेगी क्या? will our body able to produce stem cell WBC, RBC and platelet? पहला पॉइंट बताइए, क्या हमारी बॉडी ये आरबीसी डब्ल्यूबीसी बना सकेगी? ओके मधु, आई विल एक्सप्लेन। ओके रिद्धि, आई विल एक्सप्लेन। सो चलिए, सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है, हमारे अडल्ट के केस में बोन मैरो में स्टेम सेल होती है, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, हमारे बोन मैरो में जो स्टेम सेल्स है, these stem cells are responsible for the production of RBC, these stem cells are responsible for the production of WBC, these stem cells are responsible for production of platelet। ये 3 टाइप की सेल एक ही टाइप की सेल बना रही है। 3 टाइप की सेल, आरबीसी अलग है, डब्ल्यूबीसी अलग है, प्लेटलेट अलग है, ये सारी की सारी सेल एक ही टाइप की सेल से बन रही है, उसे हम कहते हैं हीमोपायोटिक स्टेम सेल्स। उन्हें हम क्या कहते हैं? हीमोपायोटिक स्टेम सेल। अब ये हीमोपायोटिक स्टेम सेल जो है, हीमोपायोटिक स्टेम सेल जो है, एक सेल से 3 टाइप की सेल बनी, इसलिए हम इन स्टेम सेल को कहते हैं प्लूरिपोटेंट। अदरवाइज आप देख लीजिए, स्किन सेल से सिर्फ स्किन सेल बनती है, आई की जो सेल्स है वो सिर्फ आईज की सेल बना सकती है, स्टमक की सेल सिर्फ स्टमक की सेल बना सकती है, लेकिन ये हीमोपायोटिक स्टेम सेल क्या कर रही है? दे आर प्रोड्यूसिंग डब्ल्यूबीसी, आरबीसी एंड प्लेटलेट, ये तीनों वो बना रही है। ठीक है, क्लियर? तो हमारे बोन मैरो में स्टेम सेल है विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट। एंड जब ये स्टेम सेल डैमेज होगी तो हमारे बॉडी में डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट बनेगी क्या? जल्दी बताइए, आई एम आस्किंग यू गाइज। आप आंसर क्यों नहीं दे रहे कमेंट में? जल्दी आंसर कीजिए। वी विल नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस दीज ब्लड सेल्स। अब अगर मेरे ब्लड में आरबीसी ही नहीं है, अब अगर मेरे ब्लड में आरबीसी नहीं है, अब अगर मेरे ब्लड में डब्ल्यूबीसी नहीं है, अब अगर मेरे ब्लड में प्लेटलेट नहीं है, तो विल आई बी एबल टू सर्वाइव? Will I be able to survive? No, I will not be able to survive। और इसी को कहते हैं aplastic anemia। What is aplastic anemia? Stem cells are damaged, and when stem cells are damaged, there is a problem, anemia हो जाता है। The bone marrow is either empty, जब bone marrow empty होता है तो उसे कहते हैं aplastic, और जब bone marrow contains very few blood cells तो उसे हम कहते हैं hypoplastic। तो this anemia can be aplastic, this anemia can be hypoplastic, this anemia can be aplastic or it can be hypoplastic। The most common cause of aplastic anemia is from your immune system attacking the stem cells in your bone marrow। So सुनिए पूरी स्टोरी, सुनिए पूरी स्टोरी। Sir, is there any lecture for everything about cells? No, there is no प्रतिभा। सुनिए, stem cells are present in your bone marrow। These stem cells are responsible for the production of RBC, these stem cells are responsible for the production of WBC, these stem cells are responsible for production of platelet। When these stem cells get damaged, अब वो damaged कैसे हो जाएगी? तो इन stem cells को हमारी immune system खुद ही destroy करेगी, उसे हम कहते हैं auto immune disorder। Sir, then what is the reason of breaking of RBC cells? That is sickle cell anemia, that is different Ramandeep। RBCs break होना, RBCs टूटना, that is different, that is sickle cell anemia। एनीमिया का मतलब होता है रिद्धि ब्लड कम होना या ब्लड में आरबीसी कम होना, उसे हम एनीमिया कहते हैं। ओके, क्लियर? सो जब हमारी इम्यून सिस्टम हमारी स्टेम सेल को डैमेज करती है तो उसे हम कहते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, और जब हमारी इम्यून सिस्टम हमारी स्टेम सेल को डैमेज करेगी, उनके डैमेज की वजह से हमारी बॉडी में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट नहीं बन पाएगी, एंड दैट विल बी नोन एज अप्लास्टिक एनीमिया। उसे हम क्या कहते हैं? अप्लास्टिक एनीमिया। सो व्हाट इज द बेस्ट वे टू ट्रीट दिस अप्लास्टिक एनीमिया? व्हाट इज द बेस्ट वे टू ट्रीट दिस अप्लास्टिक एनीमिया? बेस्ट वे टू ट्रीट अप्लास्टिक एनीमिया इज the best way to treat aplastic anemia is to have new stem cells in our bone marrow।
to have new stem cells in our bone marrow. लेकिन अब मेरी स्टेम सेल तो अवेलेबल नहीं है, मेरी स्टेम सेल तो अवेलेबल नहीं है क्योंकि मैं अभी अडल्ट हूं ना, और जो थी वो तो डिस्ट्रॉय हो गई। तो अब मुझे कुछ चाहिए, आई नीड सम डोनर हु विल डोनेट हिज स्टेम सेल्स टू मी। और जब वो स्टेम सेल डोनेट करेगा, जब वो स्टेम सेल डोनेट करेगा तो दैट स्टेम सेल शुड मैच विथ माय बॉडी। मेरी बॉडी ने उन स्टेम सेल को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अगर वो एक्सेप्ट नहीं करेगी मेरी बॉडी इन स्टेम सेल्स को, तो देयर विल बी अ प्रॉब्लम, राइट, देयर विल बी अ प्रॉब्लम। इसीलिए हम क्या करते हैं, अगर मेरा अप्लास्टिक एनीमिया ट्रीट करना है, अगर मेरा अप्लास्टिक एनीमिया ट्रीट करना है और मेरी खुद की स्टेम सेल्स अगर मिल जाए तो सबसे बढ़िया हो जाएगा। यही ऑफर होता है इन कॉर्ड ब्लड बैंकिंग में, ठीक है। ये देख लीजिए, कम्युनिटी कॉर्ड ब्लड बैंकिंग सेव्स चाइल्ड विथ अप्लास्टिक एनीमिया। कम्युनिटी कॉर्ड ब्लड बैंकिंग सेव्स चाइल्ड विथ अप्लास्टिक एनीमिया। व्हेन व्हाट इज अप्लास्टिक एनीमिया? इट इज अ कंडीशन दैट अकर्स व्हेन योर बॉडी स्टॉप्स प्रोड्यूसिंग इनफ न्यू ब्लड सेल्स एंड उसकी वजह से यू बिकम fatigued and more prone to the infections and uncontrolled bleeding. ओके, कंपैटिबिलिटी का प्रॉब्लम हो जाता है। आई आस्क बिकॉज एनीमिया प्रेजेंट 40% अबव इन फीमेल, दैट इज अ डिफरेंट एनीमिया रिद्धि। ये एनीमिया अलग है, अप्लास्टिक एनीमिया, और वो वाला एनीमिया अलग है, लेकिन दोनों में आपको सिम्टम्स सेम मिलेंगे। ओके, दोनों में आपको सिम्टम सेम मिलेंगे, राइट प्रतिभा। सो अप्लास्टिक एनीमिया, अब हम ये कम्युनिटी कॉर्ड ब्लड बैंकिंग की कंसेप्ट समझते हैं। तो देखिए, पर्सन ए को अप्लास्टिक एनीमिया है। क्या है पर्सन ए को? अप्लास्टिक एनीमिया। तो इस पर्सन ए को क्या चाहिए? दिस पर्सन ए नीड्स स्टेम सेल, दिस पर्सन ए नीड्स स्टेम सेल। अब उसके पास स्टेम सेल नहीं है, तो वो स्टेम सेल कहां से मिल सकती है उसे? अगर स्टेम सेल बैंक्स में ये स्टेम सेल रिजर्व्ड है, अगर स्टेम सेल बैंक्स में वो स्टेम सेल रिजर्व्ड है, सेव करके रखी है, तो हमें वो स्टेम सेल मिल सकती है, राइट, हमें वो स्टेम सेल मिल सकती है। गाइस विल डू वन थिंग, देयर आर सो मेनी डिस्टर्बेंसेस, मैं पढ़ा नहीं पा रहा हूं दिल से, ठीक है, मुझे खुद को अच्छा नहीं लग रहा है। तो वी विल स्टॉप हियर, वी विल कंटिन्यू आवर नेक्स्ट क्लास बाय 1:30 PM. So before I leave, you need to remember this code SKUS, because this code will give you 10% डिस्काउंट on the plus as well as iconic platform। इन दोनों जगह पे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। This is my Telegram channel, please subscribe to this Telegram channel. This is my Unacademy profile, please follow me on Unacademy and dedicate your hats to me on Unacademy. Till that time, bye bye guys, take care and have a nice time. Sayonara. We are meeting again at 1:30 PM on environment and ecology lecture. Okay?